Hello students, how are you? I just hope you all are fit and fine. So in this lecture we will complete our exercise of chapter number 6, which is climate and adaptation. Okay. So first question, choose the correct option in each. Question number first, temperature. A, increase as you go further from equator and decrease with latitude. B, decrease as you go further from equator and decrease with altitude. C, increases as you go further from the equator and increases with altitude. D, decrease as you go further from the equator and increase with altitude. So our correct option is B, temperature decreases as we go further from equator and decrease with the altitude. Now question number second, which of the following statement is true? Statement number 1, penguin are bird found in Arctic regions. Statement B, hill stations are best places to visit during summer. Statement number C, yaks are found in desert. And statement number D, camel have thin leaves which help them to eat the plant of the desert. So the correct option is B. Statement number B is correct, which is hill stations are best places to visit during summer. Now question number third. A carnivore with strips on its body move very fast while catching its prey. It is likely to be found in A, polar region, B, desert, C, oceans, D, tropical rainforest. So स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एक कार्निवोरस एनिमल के बारे में बताया गया है जिसकी बॉडी पे स्ट्रिप्स है और वो बहुत ही ज्यादा फास्ट मूव करता है. तो वो एनिमल हमें कहाँ पाया जा सकता है? सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज डी, ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट. Now question number 4. Which option best describes a tropical region? Option number A, hot and humid. B, moderate temperature, heavy rainfall. C, cold and humid. And D, hot and dry. So the correct option is A. Tropical regions are hot and humid. Now question number 5. Tilt of Earth's axis cause A, rain on the Earth. B, change of season on the Earth. C, water cycle on Earth. And D, day and night on Earth. So the correct option is B, change of season on Earth. Tilt of Earth's axis causes the change of seasons on the Earth. Now question number B. Choose the correct reasons for each. Question number first. Place near the equator are hot. Correct option is option number B, because sun rays fall vertically. That's why the places near the equators are hot. Now question number second. Mumbai has an equable climate throughout the year. So the correct option is C, because Mumbai is near the sea. Now question number third. Night in desert are much cooler. Why? Because sand cools down faster than the soil. Okay. Now question number C. Complete the given analogies. Token, beak, elephant, trunk. So students, token की क्या होती है? beak होते हैं, elephant की trunk होती है. Next is lungfish, estivation, polar bear, hibernation. Third one, polar bear, white fur, zebra, strips. पोलर बियर जो होता है उसकी बॉडी पे व्हाइट फर्स होते हैं. अपार्टली जेब्रा की बॉडी पर क्या होती है? स्ट्रिप्स होती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट. नेक्स्ट है टेम्परेचर. टेम्परेचर हम कैसे मेजर कर सकते हैं? थर्मामीटर से. एंड रेन हम कैसे मेजर कर सकते हैं? रेन गॉस से. ओके. नाउ सिक्स्थ वन, पेंगुइन्स, एंटार्क्टिक रीजन. पेंगुइन्स जो है वो हमें एंटार्क्टिक रीजन्स में मिलते हैं. देन आर्टिक फॉरेस्ट हमें आर्टिक रीजन्स में मिलती है. सेवंथ वन इज कैमल, डेजर्ट एंड याक. कैमल्स हमें डेजर्ट में पाए जाते हैं एंड याक्स हमें माउंटेन्स में पाए जाते हैं. एट वन, ट्रंक, नोज, टस्क, टेल. सो स्टूडेंट, ट्रंक जो होती है एलिफेंट की उसको हम क्या बोलते हैं? नोज बोल सकते हैं. वहीं जो टस्क होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? टीथ कहते हैं. ओके. सो स्टूडेंट्स, हियर इज द आंसर. हॉट एंड ड्राई कंडीशंस आर अवेलेबल इन डेजर्ट एरियाज. Because of hot and dry conditions, some animals live in burrows. Okay. Now question number second. Why do yaks have large lungs? Yaks की large lungs बड़ी क्यों होती हैं? So here is the answer. Yaks have a large chest that inhabits large lungs and a large heart relative to their overall body size. This enables yak to breathe rapidly and take in large amount of air from back low oxygen content of air. So students, yaks कहाँ पे रहते हैं? माउंटेन्स पे रहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत लो होता है. डेट्स वाई उनकी लंग्स जो होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले सकें. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. व्हाट कीप्स द एनिमल इन कोल्ड रीजन वार्म? जो एनिमल कोल्ड रीजन्स में रहते हैं उन्हें क्या चीज वार्म रखती है?
Most animals living in extreme and cold condition have a thick fur to keep them warm. They also have a thick layer of fat called blubber below the skin. This acts as a heat insulator and does not allow the body to heat to excess. So students, जो कोल्ड रीजन में एनिमल्स रहते हैं उनकी बॉडी पे फर होते हैं जो उन्हें वार्म रखते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. नेम द बर्ड दैट माइग्रेट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल एंड बैक. ऐसी कौन सी बर्ड है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है फिर वापस से साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक आती है. सो स्टूडेंट्स, आर्टिक टर्न इज अ बर्ड दैट माइग्रेट टू फ्रॉम द साउथ पोल. ओके स्टूडेंट्स, आर्टिक टर्न जो है वो एक टाइप की बर्ड है जो साउथ पोल से माइग्रेट होती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डू पेंगुइन्स कीप देमसेल्फ वार्म. पेंगुइन्स जो है वो अपने आप को वार्म कैसे रखते हैं. Penguins tend to remain in groups to be close to each other and feel warm and secure. So students, जो penguins होते हैं वो एक साथ ग्रुप्स में रहते हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को वार्म और सिक्योर फील करते हैं. Now question number 6. A place receives little rainfall and the temperature varies to extreme. What kind of place it is? So students, एक place है जिसमें बहुत ही कम रेनफॉल होती है और जो उसका टेम्परेचर है वो बहुत एक्सट्रीम है, तो वो प्लेस कौन सी होगी. सो स्टूडेंट्स, आंसर इज सच प्लेस इज अ डेजर्ट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट आर द 2 रीजन ऑन द अर्थ विद एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन. ऐसे कौन से 2 रीजन है जिसमें बहुत ही ज्यादा क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ही एक्सट्रीम है. Places away from the sea have desert type of climate where summers are very hot and winters are very cold. This place polar regions are extremely cold. ओके सो स्टूडेंट, जो सी से बहुत दूर है प्लेसेस वो बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट में होती हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर और क्लाइमेट में एक बेसिक सा डिफरेंस क्या होता है. सो हियर इज द आंसर. वेदर इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओवर अ पर्टिकुलर एरिया ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो स्टूडेंट, वेदर जो क्या होता है एक क्लाइमेटिक कंडीशन होती है जो थोड़े टाइम के लिए ही बताई जाती है. क्लाइमेट क्या होता है. क्लाइमेट भी किसी एक एरिया की एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है जो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए होती है. फॉर एग्जांपल, जो समर विंटर रेन है ये वेदर्स होते हैं. एंड क्लाइमेट हम किस चीज़ को बोल सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कि माउंटेन रीजन्स में या हिमालय पे क्लाइमेट क्या है, हमेशा कोल्ड ही रहता है. ओके सो स्टूडेंट्स, now next question number 2. describe the adaptation of polar bear. mention any 3. so students, हमें polar bear के कुछ adaptations बताने हैं. so here is the answer. adaptations in polar bear. polar bear has white fur which help it sneak in snow and hunt seals lying on the ice packs. now students, जो polar bear होते हैं उनके white fur होते हैं जो उनको वार्म रखते हैं. It also has flat feet covered with fur and long curved sharp jaws, thus it can move on ice freely. नेक्स्ट स्टूडेंट क्या होते हैं, उनके फ्लैट फीट होते हैं ताकि वो आइस में बहुत ही अच्छे से मूव कर सके. नेक्स्ट वो क्या होते हैं, थर्ड ऑप्शन में है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्विमर होते हैं ताकि वो पानी के अंदर से फिश को हंट कर सके. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डज एन एलिफेंट लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडैप्ट इटसेल्फ. जो स्टूडेंट्स एलिफेंट रहता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अपने आप को कैसे अडेप्ट करता है, कैसे अपनी लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ाता है. So here is the answer. Adaptation in elephants. Elephant has trunk which help in sucking up water and spraying it back in its mouth and back. The main use of trunk, however, it allows to reach up the trees and munch the foliage in the branches. The trunk is tipped with 2 fingers and that allow it to examine things or even pick up small objects. It has long ears which help it remain cool when it gets too hot and humid. Its legs are column-like. Its feet are round and have a pad to support the legs. Now students, जो एलिफेंट होता है उसकी ट्रंक होती है जिसकी हेल्प से वो वाटर पी सकता है और वो ट्रंक की हेल्प से जो हाइट्स पे ट्रीज होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनको खा सकता है. नेक्स्ट जो होता है, एलिफेंट्स के लॉन्ग ईयर्स होते हैं ताकि वो कोल्ड क्लाइमेट में उसको प्रोटेक्ट कर सके. थर्ड होता है, एलिफेंट्स के क्या होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही वाइड लेग्स होते हैं ताकि वो जो एलिफेंट की बॉडी उसको सपोर्ट करें. ओके, now question number 4. why is the climate of Delhi extreme and that of Mumbai equal. so student, जो दिल्ली का क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम क्यों है और मुंबई का इक्वल क्यों है. so here is the answer. दिल्ली का क्लाइमेट इतना एक्सट्रीम क्यों होता है, जो प्लेस सी लेवल के
नियर होते हैं उनको क्या होता है स्टूडेंट्स, उनको ना ठंडी ठंडी हवाएं फील करने को मिलती हैं, जो कि क्लाइमेट को क्या बनाता है, प्लीजेंट बनाता है और अच्छा बनाता है। अब हम जब ठंडी ठंडी हवाओं को फील करते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें अच्छा फील होता है ना। वहीं दूसरी तरफ जो दिल्ली है वो कहाँ पे है, एकदम बीच में, डेट्स व्हाई उसका जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही गर्म होता है और ठंडियाँ जो होती है वो बहुत कोल्ड होती हैं, ठीक है। Now question number 5, write a short note on characteristic of beard ape. Now students we have to write a short note on beard ape. Beard ape क्या होता है? Beard ape also known as lion-tailed macaque is an old world monkey that lives only in western Ghats of South India. So students beard ape क्या होता है? Beard ape एक टाइप के मंकी की ब्रीड है जो सिर्फ हमें वेस्टर्न घाट्स में मिल सकती है, साउथ इंडिया की। सो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, उनके ब्लैक ब्राउन फर होते हैं और उनकी बियर्ड भी होती है, ठीक है। उनकी जो टेल होती है वो मीडियम साइज की होती है, सिमिलर टू दी लॉयन। नाउ क्वेश्चन नंबर जी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज अडैप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल व्हाई ओनली सर्टेन काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन। सो स्टूडेंट्स क्लाइमेटिक चेंज के अडैप्शंस क्या होते हैं और क्यों कुछ ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस में ही रहते हैं। सो हियर इज द आंसर, to survive in different climatic conditions animals show adaptation by having different physical features and behaviors. Changes that take place in an organism over generation which enable it to live successfully in its habits are called adaptation. For example, camel is an animal which travels around in a desert type of climate. The adaptation are as under a hump to store food, long eyelashes and nostrils. So students क्या होता है, कुछ एनिमल्स ने अपने आप को अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से डेवलप कर लिया है, सो उनको उस क्लाइमेट की क्या हो गई है, आदत हो गई है, डेट्स व्हाई वो उसी क्लाइमेट में ज्यादातर रहना पसंद करते हैं। Now here is the rest of the answer. Excretion of very little urine, dry dung and also have no perspiration help to conserve water. Now students यहाँ पे हमें कैमल के बारे में बताया, कैसे कैमल ने अपने आप को डेवलप कर रखा है, ओके। Now question number 4, how does the legs of polar bear serve two purpose? Now student जो polar bear के legs है वो किस तरह डेवलप हैं? A polar bear front paws propel them through the water. The hind feet and the legs are held flat and are used as ruders. So students जो polar bear के front आगे के जो पाँव होते हैं वो उसे वाटर में स्विम करने के लिए हेल्प करते हैं, जो पीछे के पाँव होते हैं वो रीडर्स की तरह काम करते हैं, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज कैमोफ्लेज, व्हाई इज कैमोफ्लेज इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स। सो स्टूडेंट्स कैमोफ्लेज क्या होता है, कैमोफ्लेज इंपॉर्टेंट क्यों है एनिमल्स के लिए। Some animals hide by means of camouflage to deceive their enemies. They have skin color that help blend with the surrounding and hunt their prey or protect themselves from predators. Their skin color is a camouflage for them. For example, tiger, cheetah, zebra, spotted deer are some animals with this camouflage of skin color and strips or spot on the skin. So students, camouflage क्या होता है? कैमोफ्लेज क्या होता है, कुछ एनिमल्स ना छुपने के लिए अपने स्किन कलर को चेंज कर लेते हैं, या उनका स्किन कलर उसी टाइप का होता है कि वो कहीं पे भी छुप सकते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल, ज़ेब्रास, चीतास और जो डियर्स होते हैं ये हम दूर से देख सकते हैं, लेकिन हम अगर गौर से देखें तो ही हमें ये दिखेंगे। सो स्टूडेंट्स इनकी स्किन क्या करती है, इनकी स्किन एक कैमोफ्लेज की तरह काम करती है, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म माइग्रेशन। माइग्रेशन से हम क्या समझते हैं और हमें इसके एग्जांपल्स देने हैं। मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन। एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाने को ही हम माइग्रेशन समझते हैं। कुछ बर्ड्स होते हैं जैसे कि साइबेरियन क्रेन और आर्टिक टर्न जो बहुत ही कोल्ड कंडीशंस में ही रहती हैं, वो क्या करती हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक माइग्रेट करती हैं, जहाँ पे उनको कोल्ड क्लाइमेट मिलता है वहाँ पर वो रुक जाती हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।